ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PPSC ਦੇ 1000 ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਣੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 6th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? Arun get a loss of rupees 50 when he sold his watch at discount। ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ? 20% ਔਨ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੋ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 20% ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਚ ਸੀ। ਵੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਅਪ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਅਪ above cost price is equal to percentage of discount given on MP। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ MP ਤੇ, ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? 100% ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? 100% ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 20% ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੂੰ? ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਸੇਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ 20% ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 120%। ਤੇ ਮੇਰਾ SP ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਰ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਰਾ 20% ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ 120% ਹੈ, 120% ਦਾ ਮੈਂ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ SP ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? 96% ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ। 50 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 4% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50 ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100% ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ 100% ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 25 ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? ₹1250 ਇਜ਼ योर आंसर। ₹1250 मतलब ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 16 ਈਅਰ ਹੈਂਡ, 16 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਰਸ਼ਮੀ ਇਜ਼ 10/13 ਆਫ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਨੇਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਸ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੇਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10:13। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 16 ਈਅਰ ਹੈਂਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 16 ਈਅਰ ਹੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ 16 ਈਅਰ ਹੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਕਤ 2022 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 16 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ? 2038। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? 2038 ਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 8 ਈਅਰ ਅਗੋ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 4:7। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? 8 ਈਅਰ ਅਗੋ। ਹੁਣ 8 ਈਅਰ ਅਗੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਈਅਰ ਅਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਹੈ। 22 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਾ, 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 2016। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2016। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 2016, ਸੌਰੀ ਨੋਟ 2016 ਬਟ 2014, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2014। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2014। ਹੁਣ 2014 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਇੱਧਰ 3 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ 3 ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 6। डिफरेंस बिल्कुल है 6 ਤੇ 6 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 6 ਪਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਹਾ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੀ ਤੇ 7 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ 2014 7 ਸੀਗੀ, 2038 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 13। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 24 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 24 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਹੈ? 24 ਈਅਰਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ, 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? 4।
वन पार्ट की वैल्यू मेरे को की आ गई 4 तो वन पार्ट की वैल्यू में मैं जब उरे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को की आ जाऊगा उरे 28 ईयर्स इधर मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 ना मेरे को की आ जाऊगा 16 ईयर्स लेकिन जी मेरे को जी मेरे को एजिस आई हैं कदों आई हैं 8 ईयर्स अगो दी आई हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखो ये जी एजिस आई हैं मेरे को कदों आई हैं 8 ईयर्स अगो दी आई हैं ठीक है क्वेश्चन अगे की कहता प्रेजेंट एज हूँ पहला प्रेजेंट एज की गल करिए जे मैं प्रेजेंट एज की गल करा तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इस वक्त कितनी है इस वक्त जे रश्मि की गल करिए रश्मि की है 16 ठीक है तो नेहा की हैगी है 28 तो वो मैनू 8 ऐड करना पऊगा क्योंकि ये जी 8 ईयर अगो की सी ये मैं 8 ऐड करूँगा ये 8 ऐड करूँगा उरे मेरे को कितनी आ जाऊगी उरे मेरे को आ जाऊगी 24 ईयर्स उरे 8 करन ते मेरे कि आ जाऊगा 36 ईयर्स उरे मेरे को कितना आ जाऊगा ये मेरे को की आई है ये हूँ प्रेजेंट एजिस आई है हजे क्वेश्चन खत्म नहीं होया और पूछ रहा है नेहा इस वट परसेंटेज मोर कहता नेहा की जी एज सी कितनी ज़्यादा है नेहा की एज देखो कितनी ज़्यादा है तुम इतने पहला लिख लो 12 ज़्यादा है कि तो रश्मि तो 12 ज़्यादा है हूँ कंपैरिजन हो रहा है कंपैरिजन किन नाल हो रहा है रश्मि नाल तो रश्मि नीचे दी रश्मि की वैल्यू नीचे आऊगी 100 इतने आ जाऊगा 2 मेरे को कितना आ गया 50% थोड़ा आंसर मेरे को आ गया 50% मतलब अगेन ऑप्शन ए इज़ योर आंसर ऑप्शन ए इज़ योर आंसर हूँ नैक्सट देखो नैक्सट अपने को की है नैक्सट अपने को डी आई है डी आई इस डी आई है देखो थोड़े को दो अलग अलग चीज़ा गिवन है एक थोड़े को बार ग्राफ है दूजा थोड़े को पाई चार्ट है चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन कह की रहा द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज दैट टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कहना टोटल नंबर ऑफ कस्टमर शो कर रहा है जो मेरे को बार ग्राफ है ओके विजिटिंग बिग बाजार ऑन 6 डिफरेंट डे अलग अलग दिनों के इन ए वीक एंड दी पाई चार्ट शो दी परसेंटेज ऑफ फीमेल जो पाई चार्ट शो कर रहा है की शो कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल किनिया ने टोटल कस्टमर ऑन ईच डे हर डे किन्नी परसेंटेज ऑफ फीमेल है जड़ियाँ वो विजिट कर रही हैं जिमें कि मंडे ਨੂੰ 30% फीमेल है ये सिर्फ फीमेल का डाटा है 44 55 25 60 एंड 45% ये सिर्फ फीमेल का डाटा है कि ये फीमेल ने ਜਿਹੜੀਆਂ विजिट कर रही हैं तो उरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ने मतलब मंडे ਨੂੰ टोटल कस्टमर किन्ने ने 2400 उरे किन्ने ने 36 इतने 45 इतने किन्ना आ गया मेरा इतने 32 अगेन मेरा 4000 नैक्सट मेरा 2500 ये मेरे किन्ने टोटल कस्टमर ने ये मेरे ने टोटल कस्टमर चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन डी आई ते बेस्ड होगा क्वेश्चन आप अपने को बार ग्राफ ते पाई चार्ट दोनों पे की कहना नंबर ऑफ मेल कस्टमर ऑन थर्सडे व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर ऑन ट्यूसडे नंबर ऑफ मेल कस्टमर ऑन थर्सडे की गल करिए थर्सडे टोटल कस्टमर मेरे को कितने ने 3200 थर्सडे टोटल कस्टमर मेरे को कितने ने 3200 मैंने की करना है मैंने सिर्फ मेल कस्टमर करने हैं मैंने सिर्फ तो सिर्फ मेल कस्टमर कटने हैं थर्सडे ਨੂੰ मेल कस्टमर लेकिन थर्सडे ना मेरा डाटा उरे केड़ा गिवन है 25% किदा है 25% फीमेल है लेकिन मैंने किदा चाहिए मेल अगर 25% फीमेल ने तो बाकी केड़े होंगे 75% मेरे केड़े होंगे मेल तो 75% की हुंदा 75% हुंदा 3/4 75% की हुंदा 3/4 डिवाइडेड बाय क्योंकि आप की कह रहे हो की कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मेल कस्टमर और वट परसेंटेज देख रहे ना मतलब डिवाइड होगा वट परसेंटेज ऑफ फीमेल कस्टमर ऑन ट्यूसडे ਨੂੰ फीमेल कस्टमर किन्नी सी हूँ ट्यूसडे की गल करिए ट्यूसडे का टोटल कस्टमर किन्ने 3600 ट्यूसडे ਨੂੰ फीमेल कस्टमर किन्नी 3600 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100 ये मेरे को की ने फीमेल कस्टमर ये सारिया मेरे को की ने फीमेल कस्टमर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 100 क्यों क्योंकि उन्हें किया वट परसेंटेज की जी आह वैल्यू है इस वैल्यू की किन्ने परसेंटेज है मतलब इतने मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा ऑब्वियस 100 ना मल्टीप्लाई करूँगा तो उरे क्रॉस कटिंग शुरू कर दो इतने तो कितने कैंसल आउट हो जाएगा उरे 800 ठीक है वैसे 0 ना 0 आह डायरैक्ट कैंसल आउट हो जाएगी इतने आ गया 9 इतने आ गया 20 ठीक है होर कोई कैंसल आउट करते हैं इतने आ जाऊगा 3 नाल कैंसल आउट हो जाऊगा ठीक है इतने आ जाऊगा 5 इतने मेरा आ जाऊगा 9 ठीक है मेरे को कितनी वैल्यू आ गया पिछे मेरे को टोटल आ गया पिछे 4000 डिवाइडेड बाय 27 5 मेरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना 5 मेरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया जी वैल्यू उरे पई सी तो मेरे को कितना गया 4000 मतलब ये 1 ते जा रहा पिछे कितना बचा मेरे को पिछे बचा 13 130 फिर मेरी वैल्यू जाऊगी 4 ते 4 तो बाद मेरे को कितना बचा 22 मतलब 200 भी उस तो बाद मेरी वैल्यू जाऊगी है उस तो बाद मेरी वैल्यू जा रही है 8 ते ठीक है 8 ते पिछे 2/7% 27% सो दिस इज योर आंसर 148 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल कस्टमर ऑन मंडे सिर्फ मेल कस्टमर की गल हुई है
ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਸੈਚਰਡੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਡੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਸਟਮਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2400। 2400 ਟੋਟਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 70%, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 70%, मतलब 7.10, 0 ਨਾਲ 0 कैंसल आउट हो गई। मेरे को कितना आ जाऊगा 8, पिछे कितना बचेगा 21680। ये मेरे को क्या गया मंडे की वैल्यू आ गई, ठीक है, मंडे के मेल कस्टमर आ गए। हूँ वैडनसडे की गल करा, वैडनसडे टोटल कस्टमर कितने 4500 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਚ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ 2/5 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 40% ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 900, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1800, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਟੋਟਲ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4000 ਟੋਟਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 45% ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 45% ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 9/20, 2 ਨਾਲ 2 ਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 200। ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1800 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਟੋਟਲ ਕਸਟਮਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2500। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਲ ਕਸਟਮਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ मतलब ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 56 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, 0 ਨਾਲ 0 ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। 1400 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1800 3600 ਦੇ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6000 ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मतलब ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6680। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6680 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ 11670 इज योर आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर ऑन फ्राइडे ਨੂੰ टोटल नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर चाहिए एंड सैचरडे ਨੂੰ चाहिए अप्रोक्सीमेटली वट परसेंटेज मोर और लैस। उन्हें क्वेश्चन है मोर और लैस का, ठीक है, मतलब दोनों का पहला मैंने डिफरेंस देखना भी पऊगा, ठीक है। चलो पहला फीमेल कस्टमर की गल करते हैं। फीमेल कस्टमर फ्राइडे ਨੂੰ टोटल कस्टमर कितने 4000 ਨੂੰ टोटल कस्टमर मेरे फ्राइडे ਨੂੰ, ਤੇ फ्राइडे ਨੂੰ फीमेल कितनी है 15000। मतलब मेरे को कितना आ जाऊगा है, मेरे को आ गया 2200 मेरे को आ गई फीमेल। उस तो बाद सैचरडे की गल हो रही है, सैचरडे मेरे को कितने टोटल 2500 मेरे को टोटल कस्टमर ने। तो सैचरडे मैं डाटा गलत ले लिया आई थिंक, फ्राइडे नहीं सॉरी, ओके ठीक है। सैचरडे ਨੂੰ टोटल कस्टमर फीमेल कस्टमर 4400, मतलब टोटल 2500 ਦਾ 44% मेरे को कट दिया। मेरे को कितनी वैल्यू आ जाएगी, मेरे को वैल्यू आ जाएगी 1100। मेरे को कितनी वैल्यू आ गई 1100। तो ये मेरे को कितना आ गया टोटल, कितना आ गया फीमेल टोटल की गल करा मेरे को आ गया 3300। उस तो बाद मेरे को की कह रहा है, उस तो बाद मेरे को कह रहा है मैं मेल कस्टमर की गल करनी है मंडे ते ट्यूसडे मैं करनी है मेल कस्टमर की गल। मेल कस्टमर मंडे ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ 7/10, 0 ਨਾਲ 0 कैंसल आउट होगी। तो इतने कि आ गया 1680, मेरे को कि आ गया 1680 प्लस। उस तो बाद मेरी गल की ट्यूसडे ਨੂੰ टोटल कस्टमर मेरे कितने 3600 टोटल कस्टमर ने। तो उस तो बाद मेरे मेल कस्टमर च कितने ने 55% मेल कस्टमर, मतलब 1800 च 180 ऐड करूँगा 0891, मतलब 1980 मेरे को टोटल कस्टमर ने। मतलब मेरे को टोटल मेल कितना आ गया 0663। देखो टोटल फीमेल मेरे को इतनी आ गई, टोटल मेल मेरे को कितनी आ गई 3660। ये मेरे को टोटल वैल्यू आ गई। दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ मोर और लैस ਲਈ ਮੈਨੂੰ डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस मेरे को कितना आ रहा है, 360 मेरा की आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। हूँ मोर और लैस किन्ने ज़्यादा ने, ये ज़्यादा ने, मतलब मेल कस्टमर की है ज़्यादा है, मेल कस्टमर की है ज़्यादा है। मेल कस्टमर का कंपैरिजन किन नाल हो रहा है, ज़्यादा नाल ही हो रहा है। 3600 गुणा 100, तैनू जे मैं 6 से कैंसल आउट करदा ऊपर कितना आ जाऊगा 60, नीचे कितना आ जाऊगा 61। तो मेरे को वैल्यू कितनी आ रही है 6000 डिवाइडेड बाय 61। हूँ 6000 डिवाइडेड बाय 61 तुहानू पता वैल्यू है 10 ते तो जाऊगी नहीं, 10 तो घट है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9.8 के अराउंड है। तो जे आप क्वेश्चन देखिए तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 10%। क्यों आई थिंक अप्रोक्सीमेट आपको क्वेश्चन के भी लिखा है। देखो अप्रोक्सीमेट आपको क्वेश्चन के भी लिखा हुआ सी, मैनू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए सी, ठीक है, मतलब मैनू 9.8 देखने की भी लोड़ नहीं सी, मैनू सिंपल देखने की लोड़ नहीं सी कि 10% के अराउंड मेरी वैल्यू जा रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर, एवरेज की गल कही है उन्हें, ध्यान देना इस चीज़ से। एवरेज नंबर ऑफ मेल कस्टमर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे ते फ्राइडे नू मैनू की चाहिए एवरेज देखनी है मेल कस्टमर की। मेल कस्टमर की मैं एवरेज देखनी है ट्यूसडे ते फ्राइडे। पहला ट्यूसडे देख लिया, ट्यूसडे टोटल कस्टमर कितने ने 3600, टोटल कस्टमर कितने ने 3600, मैनू की चाहिए सिर्फ मेल,
ट्यूसडे की गल मतलब 5500 मतलब मेरा कितना आ जाऊगा 1800 प्लस 180 मेरे को कितना आ गया 1960 मेरे को कितने आ गए मेल कस्टमर आ गए। ठीक है 1980 आएगा 60 नहीं आएगा, मैं भी कमा कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है 1980 मेरे को किया गया मेल कस्टमर आ गए ट्यूसडे ਨੂੰ फ्राइडे की गल करा फ्राइडे मेरे को कितने 4000 मेरे को टोटल कस्टमर ने 4000 चो मैंने सिर्फ मेल चाहिए। फ्राइडे की गल करा मतलब 45% मतलब मेरे को कितना आ जाऊगा 2002 मतलब कितना आ गया 1800 मेरे को किया गया मेल कस्टमर। ये दोनों हूँ ये दोनों की एवरेज की गल की मतलब ये दोनों एडिशन करा हूँ ये दोनों का एडिशन करा तो मेरे को कितना होगा 18 36 3780 3780 2 ਨਾਲ डिवाइड करा मेरे को कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे को आ जाएगी 18 दूनी 36 तो 18 ठीक है 18 पिछे एक कैरी चल गया 1890 मेरे को यह वैल्यू आ गई। ठीक है उस तो बाद देखो उस तो बाद मैंने की क्या एवरेज नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर ऑन सैटरडे एंड सैटरडे फीमेल की गल करिए फीमेल की गल की करिए सैटरडे ते वैडनेस की गल हो रही है। हूँ सैटरडे देखिए सैटरडे मेरे को दो टोटल किन्ने 2500 फीमेल किन्नी 2500 चो 44% मेरे को किन्ने ने फीमेल ने 2500 चो 44% मतलब मेरे को 1100 मेरे को किन्नी आ गया फीमेल आ गई। ठीक है उस तो बाद गल हो रही है वैडनेस टोटल कस्टमर किन्ने 4500 च मैनू किन्नियां चाहिए फीमेल वैडनेस 60% 45 90 तो मेरे को 2700 मेरे को कितना आ गया 2700 दोनों मिला के मेरे को कितना आ गया 3800 का जो मैं हाफ करा मेरे को कितना होगा क्यों एवरेज की गल की है उन्हें एवरेज की गल की है मेरे को कितने आ गया उरे 1900 आ गया 1900 तो 90 दोनों के डिफरेंस देखो किन्ने रहा डिफरेंस देखो 1980 तो 990 चो 1890 डिफरेंस किन्ने रहता डिफरेंस किन्ने रहता मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑन मंडे एंड सैटरडे। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर क्या है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मंडे ਨੂੰ किन्ने है मंडे ਨੂੰ ਜੇ मैं उरे देखा मेरे को किन्ने है 2400 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ सैटरडे ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ 2500 तो मैंने ये वैल्यू तो सीधी ऐड करी 24 तो 2500 मेरे को कितना आ गया 49 हो गया। ठीक है तो ये चीज़ तो खत्म होगी टूगैदर। टोटल नंबर ऑफ मेल कस्टमर हूँ मैं मेल कस्टमर की गल करनी है मैंने फ्राइडे तो वैडनेसडे चाहिए मेल कस्टमर। फ्राइडे देखा पहला फ्राइडे किन्ने 4000 चो मैनू मेल किन्ने चाहिए फ्राइडे की गल है 55% 45% 4000 चो मैनू कितना चाहिए 45% जो 50% करा मेरे को कितना आएगा 200 मतलब कितना मेरे को आ गया 1800 मेरे आ गए मेल। हूँ जो मैं गल करा वैडनेसडे की टोटल कस्टमर मेरे किन्ने ने 4500 टोटल कस्टमर मेरे ने 4500। ठीक है उस तो बाद मैं की चाहना वैडनेसडे मैनू की चाहिए हूँ मैनू चाहिए 40% क्यों 40% मेरे मेल ने क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेल की गल की है तो मैं 40% वैल्यू लूँगा 40% 4500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 2/5 कर देना 40% कितना होंगे 2/5 होंगे इतने कितना आ जाऊगा 900 तो यह भी कितना मेरा आ गया 1800 मतलब 4900 इधर 1800 प्लस कितना हो जाऊगा 3600 20 कैंसिल आउट हो गया मतलब 49:36 मेरा किया गया आंसर 49:36 मतलब ऑप्शन डी की आ गया मेरा आंसर। ठीक है मूविंग टू नैक्सट क्वेश्चन ओके हूँ जरा तुम इस क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान दो जी आप DI की है मतलब 5 क्वेश्चन किए है ना तो पंजों के पंजों क्वेश्चन जोड़े सारे डाटा से ना जोड़ा भी डाटा 5 क्वेश्चन मैनू हर चीज़ मैनू चाहिए सी मैनू मेल कस्टमर भी चाहिए सी मैनू फीमेल कस्टमर भी चाहिए सी तो ये ऐदा भी कर सकते सी ऐदा भी कर सकते सी एक एग्जाम्पल दे रहा कुछ क्वेश्चन दे विच हो सकता है। ठीक है वो की कर सकते सी तुसी मेल ते फीमेल का तुसी सारा डाटा पहला ही कंपाइल कर लो। ठीक है मंडे ट्यूसडे वैडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐदा इन्हों सारा डाटा ही कंबाइन कर लो ताकि इक्को जगह थोनों सारा डाटा इकट्ठा मिल जाए। ठीक है इक्को जगह थोनों सारा डाटा इकट्ठा मिल जाए तो ये तुसी ऐदा भी कर सकते हो। ठीक है ये सुजैशन है कई क्वेश्चनों के लग सकती है कई क्वेश्चनों के एप्लीकेबल हो सकती है ये चीज़। ठीक है ओके मूविंग टू नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है ए सम इज लैंड एट P% पर एनुअल सिंपल इंटरस्ट फॉर 2 years 2 साल ਲਈ कोई सम P% ਤੇ लैंड किया गया इंस्टैड इट हैड बीन लैंडेड पर कहना गलती नाल 2% ਤੇ लैंड हो गया तो सिंपल इंटरस्ट से किन्ने टाइम ਲਈ 4 क्यों मोर ईयर्स। देखो ध्यान नाल पढ़ना हो रहा की लिखा क्यों मोर ईयर्स क्यों टाइम ज़्यादा मतलब जो मैं लिखा देखो पहली लाइन लिख रहा मैं पहला कहता सम है P% ਤੇ 2 साल ਲਈ की करता लैंड करता। ठीक है पहली लाइन है दूजी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कह रहा है ਉਹੀ सेम सम है 2% ਤੇ 2% ਤੇ किन्ने टाइम पीरियड ਲਈ कह रहा है 4 क्यों मोर ईयर किदे तो जेडे पहला मेरे को 2 साल सी वो तो क्यों ज़्यादा
ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। मतलब मेरे को ए भी सिंपल इंटरेस्ट है, ए भी सिंपल इंटरेस्ट है, पी क्यू आर सॉरी पी क्यू टी दोनों मेरे को की है सिंपल इंटरेस्ट। हूँ अगे की कह रहा है then the interest would have been 5 times। ओके कह रहा है जे मैं ये चीज़ ते मैं जे मैं गलती नाल आह चीज़ ते मेरे की हो गया इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं करना सी इस तरीके नाल, पर कहता मेरी वो चीज़ जी पहली सी वो कितनी बन जानी सी 5 टाइम्स बन जानी सी। मतलब यह टर्म मेरी इहदे की होनी सी 5 टाइम्स होनी सी। मतलब जे मैं इधर 5 टाइम करदा की हो गया, मतलब जे मैं इधर 5 टाइम करदा तो दोनों चीज़ां इक्वल हो जानियां सी ना। उन्हें किया दैन दी इंटरेस्ट वुड हैव बीन 5 टाइम्स, की हो जाना सी इंटरेस्ट 5 गुणा हो जाना सी। इस चीज़ का यह चीज़ कितनी होनी सी 5 गुणा हो जानी सी। लेकिन जे मैं 5 इधर मल्टीप्लाई करदा तो दोनों सिमिलर हो गई, दोनों सिमिलर हो गए तो मैं उरे इक्वल टू लिख सकदा, इक्वल टू लिखता। हुण अगे परसेंटेज ते पी, परसेंटेज ते पी कैंसल आउट हो गया, ठीक है, सम नाल सम कैंसल हो गया, ठीक है, 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया। तो पिछे मेरे को वैल्यू की बची, पिछे मेरे को इधर बचा 5, इधर बचा 2 प्लस क्यू, तो क्यू की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 ईयर्स। क्यू की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 ईयर्स। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ओके नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है, कहना 1000 kgs ऑफ फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड 4 रुपीज, सॉरी नॉट प्रोड्यूस्ड बट परचेज्ड, ठीक है, अन्य परचेज कितने अन्य पैसे रहे। इट इज सोल्ड इन सच ए वे दैट आफ्टर सेलिंग द होल क्वांटिटी द वैल्यू इज लॉस। कहता मैं 100 किलो कोई फ्रूट खरीदा या कुछ भी, हाँ फ्रूट खरीदा, ठीक है, किस रुपीज़ से खरीदा, इस रुपीज़ से। मतलब यह चीज़ मेरी की होगी कॉस्ट प्राइस, यह चीज़ मेरी की होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कहता वो इस तरीके ना सैल किया तो मैनू की हो रहा है एट दी एंड की हो रहा है लॉस हो रहा है, एट दी एंड मैनू की हो रहा है लॉस हो रहा है। इस इक्वल टू वो बाकी कह रहा है इक्वल टू है 37 1/2% मोर दैन द अमाउंट अपटेन्ड बाय सेलिंग दिस 28 kg ऑफ फ्री। वो चीज़ अलग कह रहा है, वो नैक्सट लाइन के समझाना, ठीक है। पहली गल इस क्वेश्चन के मैनू किते भी सैलिंग प्राइस का जिक्र नहीं होया, लेकिन सारे किते गल हो रही है सैलिंग की। मतलब मैनू सैलिंग प्राइस की उरे जरूरत पैनी है। लैट्स से मैं सैलिंग प्राइस को अज्यूम कर लिया एक्स, लैट्स से मैं सैलिंग प्राइस को अज्यूम कर लिया एक्स। हुण वो मैनू की कर रहा, कहता मैं की किया 100 kg सैल किए। अगर मैं 100 kg सैल किए है, अगर मैं 1 kg एक्स रुपीज़ से सैल कर रहा तो 100 kg किन्ने रुपीज़ से सैल करूँगा 100x से। 100 kg मैं सैल कर रहा तो किन्ने सैल करूँगा अन्ने, ठीक है। मतलब यह मेरी की है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, आ मेरी की होगी सैलिंग प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के विचों सैलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरा लॉस आ जाऊगा, मेरा लॉस आ गया। क्वेश्चन भी मैंने वही कह रहा है भी मैंने लॉस होया, मतलब उरे तक वैल्यू ठीक है। अगे नैक्सट की कह रहा है इस इक्वल टू, वो कहता इक्वल है, मतलब कहता इक्वल है, मैं उरे इक्वल ही रहता। इक्वल किदे है, कहता इक्वल किदे है, अगर वो 28 kg दे, अगर वो 28 kg दे जेडे फ्रूट आ सैल करे, 28 kg दे फ्रूट सैल करे, मतलब 28x सैलिंग प्राइस तो एदा भी आऊगा। कहना 28 kg दे फ्रूट सैल करे, लेकिन ओदे विच कितना ज़्यादा होवे 37 1/2% मोर होवे। 37 1/2% की हुंदा है 3/8, लेकिन मोर की गल की तो 3 उपर 8 उपर जाके ऐड हो जाऊगा, मेरे को कितना हो जाऊगा 11/8। ये मेरे को की आ गई वैल्यू, मतलब 11/8 नाल मैं की करूँगा इनू मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि वो की कह रहा है 37 1/2% मोर ज़्यादा। अगर इस जो भी ये वैल्यू आई है मेरी की है सैलिंग प्राइस है, सैलिंग प्राइस कितना है 28 kg का, ठीक है। इनू जे मैं 11/8 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वैल्यू कि होगी ए दे इक्वल होगी, वो वैल्यू ए दे इक्वल होगी। ये चीज़ कह रहा है। हूँ अगे इनू मल्टीप्लाई कर दो, इतने कितना आ जाऊगा 8, इधर आ जाऊगा 2, लेकिन 10 0 3 डिवाइडेड बाय 8x, इधर मेरे को कितना आ गया 1835 माइनस 100x, ठीक है। ये दोनों की कटिंग कर दो, कटिंग करके थोड़े को कितना आ जाऊगा 38.5, ठीक है। 1385 इज इक्वल टू 100 नहीं आऊगा, ऐड हो जाएगी 138.5x। देखो x की वैल्यू थोड़ा सीधा और की पता चल रहा है, x की वैल्यू थोड़ा कितनी आ रही है 10 आ रही है, x की वैल्यू थोड़ा की आ रही है 10 आ रही है। कहता अगर 1 फ्रूट की गल करा, 1 फ्रूट की गल करा 1 kg ऑफ फ्रूट, नॉट 1 फ्रूट 1 kg ऑफ फ्रूट, वो किन्ने ते सैल हो रहा है 10 रुपीज़ ते सैल हो रहा है। चलो नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है, कहता मिक्सचर ऑफ 2 कंटेनर ए एंड बी। कहना 2 कंटेनर मिक्सचर है, इक्वल कैपेसिटी कंटेन वाइन एंड वाटर, दोनों की इक्वल क्वांटिटी है, वाइन एंड वाटर है, ठीक है। इत्थे भी ए है वाइन वाटर, उरे बी है वाइन वाटर,
ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ A ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ B ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5:4 ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 3:7 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਵੈਸਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਸਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੈਸਲ C ਵੈਸਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੂਗੀ। अगर हर कंटेनर विच वाइन एंड वाटर पिया उन्होंने मैं चक के उधर पाऊंगा तो वाइन एंड मतलब उधर भी वाइन एंड वाटर की ही रेशो बनूगी। हाँ रेशो बनूगी एक चीज़। उस तो बाद की कर रहा है, उस तो बाद आप ये देखना है कि उरे सी दे विच कितनी मतलब वाइन एंड वाटर की रेशो बनूगी। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वैसल सी इज, मैंने दसा वाटर की क्वांटिटी अन्नी लीटर है। ठीक है। दैन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन इन वैसल ए, वाइन दे विच वैसल ए की क्वांटिटी नूं तुसीं फाइंड आउट करना है। पहला मैं ए फाइंड आउट करूँगा कि मेरी टोटल क्वांटिटी है कितनी, पहला मैं ए फाइंड आउट करूँगा मेरी टोटल क्वांटिटी है कि नहीं। टोटल क्वांटिटी मतलब ए सारी क्वांटिटी नूं, ए सारी क्वांटिटी नूं जे मैं ए च पा दूंगा वो मेरी टोटल क्वांटिटी बन जूगी। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन हुण करना किवें, ये क्वेश्चन करना किवें होता ध्यान दिओ। देखो जदों भी तुहाडे कोल ऐ जिहा क्वेश्चन आवे कि दो कंटेनर नूं चक के तुसीं तीजे कंटेनर च पाता, तुसीं की करना है इहदा सम कर लो दोनों रेशो दा, उरे कितना आ गया 9, ये दोनों रेशो दा सम करो तुहाडे कोल कितना आ गया 10। ये वैल्यूज आ गई। हुण मैं की करना ये 9 ते 10 जी मेरे को वैल्यू सही है इन्होंने मैं करना इक्वल। इन्होंने इक्वल किवें करूँगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा 10 नाल, इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 नाल। ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 90, इधर भी मल्टीप्लाई हो गए की हो गया 90। हुण जिहड़ी वैल्यूज उरे मल्टीप्लाई की वो अंदर भी मल्टीप्लाई होणगियां, मतलब इत्थे भी 10 नाल मल्टीप्लाई हो, उरे भी 10 नाल। ये कितनी बन जूगी 50:40। इत्थे भी मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 सॉरी नॉट मल्टीप्लाई बाय 10, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 नाल, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 नाल। इत्थे कितना आ गया 27:63। हुण जिहड़ी वाइन वाली वैल्यू आ वो वाइन दे विच ऐड होगी। हुण आपां एडिशन करांगे, हुण आपां इहदा एडिशन करांगे। आपां पहलां डायरैक्ट कदे भी एडिशन नहीं कर सकते। हुण वाइन वाली वैल्यू वाइन दे विच ऐड होगी। 50 + 27 मेरे कोल कितना आ गया 77 ते बाद चों वाटर वाली वैल्यू वाटर दे विच ऐड होगी। जदों वाटर वाली वैल्यू वाटर दे विच ऐड होगी मेरे कोल कितना आ गया 103, मेरे कोल कितना आ गया 103। ठीक है, उरे तक क्लीयर है। हुण ये दोनों दा टोटल करांगे, वाइन ते वाटर का दोनों टोटल करके मेरे को कितना आ गया 180। 180 मेरे को की चाहिए 180 मेरे को की है टोटल क्वांटिटी जी ए ते बी दोनों के विच सी वो मेरे को की आ गई टोटल क्वांटिटी, मेरे को टोटल क्वांटिटी आ गई। हुण तुहानूं एक लाइन और भी दी हुई है उरे की दिता होया 206 एदी कितनी है वाटर की क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मेरी 2, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी होगी 2, 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी होगी 2। ओके हुण नैक्सट तुहानूं की कह रहा सी इनिशियल क्वांटिटी वैसल ए दे विच फाइंड आउट करना सी कि वाइन कितना है, वैसल ए दे विच वाइन फाइंड आउट करना सी ए वाइन कितनी है। हुण वाइन की गल करां वाइन है कितनी 5, टोटल वैसल ए दे विच टोटल लिक्विड कितना है 5 + 4 टोटल लिक्विड है 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी मेरे को कितनी है 180, टोटल क्वांटिटी मेरे को कितनी है 180। इनू मैं उरे कैंसल आउट करता 20 मेरे को कितना आ गया 100 लीटर्स। मतलब वैसल ए दे विच जिहड़ी मेरे को वाइन सी वो कितनी सी 100 लीटर सी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग टू नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन, कहता ए कर रहा है कोई काम कितनी डेज एक्स डेज दे विच, बी वही काम कर रहा है एक्स + 4 डेज दे विच, एक्स + 4 डेज दे विच। ओके ठीक है। ए इज 20% मोर एफिशिएंट दैन बी, मतलब उरे एफिशिएंसी की गल हो रही है। की गल कर रहा है ए रेशो बी की गल करा उरे लिख देना ए रेशो बी की गल करा तो की गल हो रही है एफिशिएंसी की गल हो रही है। 20% की होंगे 20% कितना होंगे 1/4 होंगे, 20% मोर की गल कर रहा है, मतलब मेरे को की बनूगा 5:4, मेरे को की बनूगा 5:4। हुण जिहड़ा टाइम एंड वर्क है ये की कह रहा है एफिशिएंसी के जिहड़े टाइम है दोनों की होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे हैं, दोनों की होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे तो मेरे को टाइम की रेशो की बन जूगी रेसिप्रोकल होकर उरे बन जूगी 4:5, मेरे को की बन जूगी 4:5। ठीक है ओके हुण अगे की दस्सिया दैन फाइंड द टाइम विच ए बी एंड टुगैदर टू कंप्लीट द वर्क इन वर्किंग अल्टरनेट डेज। तो मैं फाइंड आउट करना है कि दोनों ने मिलकर किन्ने दिन काम किया जे दोनों ने अल्टरनेट डेज दे विच वर्क किया। ध्यान नाल देखो सब तो जरूरी पॉइंट यह है, सब तो ज़्यादा गलती उरे होगी उन्होंने की किया अल्टरनेटली, काम सारा ने की किया अल्टरनेटली। देखो हुण देखो टाइम देखो मेरा ए टाइम घट ले रहा है बी टाइम ज़्यादा ले रहा है, रेशो दे विच दोनों डिफरेंस कितना है, रेशो दे विच दोनों डिफरेंस की है 1 है। लेकिन मैं टाइम की गल करा टाइम दे विच दोनों डिफरेंस कितने है उरे एक्स है उरे एक्स है, टाइम दे विच दोनों डिफरेंस कितना है 4 डेज, टाइम दे विच दोनों डिफरेंस कितना है 4 डेज, मतलब रेशो दी 1 की इक्वल है वैल्यू दे 4 दे, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 4। तो मैं 4 नूं इत्थे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना आ जाऊगा 16, 4 नूं मैं इत्थे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना आ जाऊगा 20, मतलब ए है जिहड़ा 16 डेज लै रहा, बी कितना टाइम लै रहा 20 डेज। हुण यही वैल्यू नूं
ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ A ਆਊਗਾ, ਮੈਂ B ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ A ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, A 16 ਡੇਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, B ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, B ਲੈ ਰਿਹਾ 20 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ LCM ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 80 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਜੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ है, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब अगर उरे सेम आ रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जूगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक कर रहे हो बिल्कुल सही है, ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ A ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ A ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ A ਫਸਟ ਡੇ A ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, A ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ B ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ B ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ A ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ B ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ A ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ B ਕਰੂਗਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ B ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ B ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ 4, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 80 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਲੋਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਉਨਾ ਕਲੋਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 81 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 8 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 80 ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 16 ਡੇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 72 मतलब 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ 72 ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਸੀ 80 72 ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 8 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ B ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ B ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ A ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ मतलब 17th ਡੇ A ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, A ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, A ਨੇ 5 ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ 72 ਤੇ 5 मतलब ਉਹਦੇ 5 ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 77, ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 77। ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ B ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ 3, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 मतलब ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ B ਨੂੰ 3/4 मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 17 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। 17th डे ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 18th डे मतलब 18th डे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। 70 डे तो शुरू हो गया लेकिन 18वां दिन मेरा पूरा नहीं होया तो वो कितना आ जाऊगा 3/4 डेज। अन्ना टाइम लगूगा टोटल वर्क ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗੀ मतलब 17 मतलब ऑप्शन ए इज माई आंसर ऑप्शन ए इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है एवरेज एजिस ऑफ ए बी सी इज 40 ईयर्स। कहता एवरेज एजिस सारे ने की है 40 ईयर्स है। अगर ए प्लस बी प्लस सी मैं ऐदा भी लिख सकता ना 120 ईयर्स क्योंकि 3 ਨੂੰ मैं इधर जाके मल्टीप्लाई करता ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट एजिस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सी। हुण मेरे को नेक्स्ट लाइन की कह रहा है ए ते बी दोनों की इक्वल ने, अगर दोनों सम करा वो सी दे इक्वल ने ठीक है, ये भी ठीक है। अगे मैंने रेशो भी दी है, रेशो ऑफ ए रेशो सी मेरे को कितनी है, ए रेशो सी मेरे को कितनी है 2:3। उन्होंने सारा कुछ दिता होया क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ डिफरेंस पता करना ਆਪਾਂ B ਤੇ C ਦਾ, B ਤੇ C ਦੀ एजिस ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस पता करना। देखो अगर A ਤੇ B मेरा C ਤੇ बराबर है ਉਹ ਚੀਜ਼ मैं ਉਰੇ पुट कर सकता C + C = 120 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ C ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ 60 ईयर्स। C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ईयर। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 60 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 20 मतलब उरे A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40 ईयर्स। देखो मेरे को C ਦੀ वैल्यू आ गई, मेरे को A ਦੀ वैल्यू आ गई। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ 40 + B C ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਤਾਂ B ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ईयर्स। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
क्वेश्चन कह रहा है मैनू चाहिए डिफरेंस किदा बी ते सी दा, मतलब सी माइनस बी, सी मेरे को कितना है 60, बी मेरे को कितना है 20, दोनों का डिफरेंस मेरे को कितना है 40 ईयर्स का, दोनों का डिफरेंस मेरे को कितना है 40 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी, दोनों का डिफरेंस कितना है 40 ईयर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है दी रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजू एंड संध्या, अंजू ते संध्या दी प्रेजेंट एज की गल हो रही है, प्रेजेंट एज कितनी है 13 रेशो 17, प्रेजेंट की गल मतलब उरे मैं 2022 लिख दी ना, क्वेश्चन देखते हैं कितने जाता है। 4 ईयर्स अगो 4 साल पहला दी रेशो ऑफ देयर रिस्पैक्टिव एजेस वर 11 रेशो 15, कहता 4 साल पहला की गल करा 4 ईयर अगो, 4 साल पहला मतलब ये तो 4 साल उरे कितना आ जाऊगा 2018, उरे कितना आ जाऊगा 2018। ओके ठीक है, हुण अगे की कह रहे हैं वट विल बी रिस्पैक्टिव रेशो ऑफ देयर 6 ईयर हैंड, 6 साल अगे की एज दसनी है, प्रेजेंट एज तो 6 साल अगे की एज दसनी है। हुण क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहला की देखेंगे आप दोनों डिफरेंस किन्ने दा 4 का, उरे भी डिफरेंस कितना 4 का, मतलब दोनों का डिफरेंस रेशो का सेम है। हुण मैं बाद कोई भी एक वैल्यू पिक कर लूँगा, आह पिक कर लूँगा या यह पिक कर लूँगा, लैट्स से मैं आह वैल्यू पिक कर ली इधर है 13 17 इधर है 15। हुण संध्या दी दो अलग अलग सालों के रेशो का डिफरेंस कितना है, रेशो का डिफरेंस है 2, लेकिन वही वैल्यू के ईयर्स का कितना डिफरेंस है, ई का डिफरेंस है 4 ईयर्स, यही है ना। तो 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2, 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2, वो 1 पार्ट की वैल्यू मैं प्रेजेंट के ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मैं कितना उरे 2 ना मल्टीप्लाई किया मेरे को कितना आ गया 34, मेरे को कितना आ गया 34, वही चीज़ मैं इधर 13 की मल्टीप्लाई करती 2 नाल, मेरे को कितना आ गया 26 ईयर्स, तो मेरे को उरे तक कितना आ गया 26 गया। हुण प्रेजेंट एज की गल हो रही है, प्रेजेंट एज में अंजू ते संध्या कितनी आ गई, इधर आ गई 26 आ गई, एदी कितनी आ गई सी, एदी आ गई 34। हुण इत्थे क्वेश्चन हजे खत्म नहीं होया, वो की कह रहा सीगा, कहंदा 6 ईयर हैंस 6 साल अगे, मतलब एदे विच भी 6 ऐड होगा, एदे विच भी 6 ऐड होगा, उरे कितना आ गया 32, उरे कितना आ गया 40, मतलब 8 के टेबल तो देख लिए 8 चौका 32, 8 5 40, मतलब 4:5 उन्होंने इस वक्त की रेज बनती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ माई आंसर। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है ए स्पीयर ऑफ ए रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, एक मेरे को स्पीयर है जिहदा रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है, इस मेल्टेड अच्छा मेल्ट करता आप एंड रिकास्टेड इनटू स्पीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो मैं उन्होंने रिकास्ट करता कि 2 सेंटीमीटर के स्पीयर के। ओके हूँ मेरे को कह रहा स्पीयर का जो भी देखो अपने को एज कोई क्वेश्चन आ जाए ना, जो भी किसी गल कही हो कि मैं कोई चीज़ को मेल्ट किया, मेल्ट करके उन्होंने मैं 2 छोटिया चीज़ा बना लिया या वड्डी चीज़ बना ली, कुछ भी कर लिया, मेल्ट करके सारे जोड़ता। यह जे क्वेश्चन के हमेशा आप की करना है, आप वॉल्यूम नाल डील करांगे, आप वॉल्यूम नाल डील करांगे। तो उरे देखो मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की आ जाऊगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की होंगे 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हूँ जो मैं 6 की गल करा तो मेरे को कितना आ जाऊगा 4/3 पाई 6 द क्यूब। ठीक है, हूँ ये तो मेरी किन्ने बनते हैं, किन्ने स्पीयर बनते हैं वो नहीं मैंने पता, लेकिन मैंने ये तो पता है रेडियस मेरा घट रहा है, रेडियस मेरा कितना घट रहा है पाई 2 द क्यूब। हूँ देखो यदी वैल्यू कितनी है, ये है 1, यदी वैल्यू कितनी है, स्पीयर की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन यदियाँ वैल्यू कितनियाँ बननगियाँ मतलब किन्ने स्पीयर होर बन गए वो नहीं मैंने पता, लेकिन मैंने ये पता दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्यों दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम वही रहा है लेकिन नंबर ऑफ वो एक दा रेडियस घट हो गया तो नंबर ऑफ उन्होंने वो वध गया स्पीयर, मतलब नंबर ऑफ स्पीयर वध गए। हूँ देखो जिहड़ियां चीज़ मेरी उन्होंने कॉन्स्टेंट ने वो मैं कैंसल आउट कर दूंगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों उरे कैंसल आउट हो जाएंगे। उरे कितना आ गया 216, इत्थे कितना आ गया 8x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स मेरे को उरे क्या आ जाएगा, दोनों कैंसल करूँगा तो एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी 27। मतलब वो कहना की चाह रहा है, कहता जे मैं रेडियस 6 तो घटा के 2 करदा स्पीयर का, 6 तो घटा के 2 स्पीयर का रेडियस करदा तो टोटल मेरे को 27 स्पीयर बननगे, तो टोटल मैं 27 स्पीयर बना सकदा। ओके नैक्सट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। हूँ कहता रोम्बस की गल कर रहा है, हूँ रोम्बस होंगे अपने को इस टाइप का, कहता यदि साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल, कहता एक डायगनल वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की है, एक डायगनल वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। वट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस, हूँ आप एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। हूँ जे मैं एरिया ऑफ रोम्बस की गल करा तो एरिया ऑफ रोम्बस का की फार्मूला होंगे, होंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2, लेकिन मैनू d1 एक गिवन है, लेकिन मैनू d1 एक गिवन है, डायगनल एक गिवन है, मैनू मतलब डायगनल एक होर चाहिए, मैनू डायगनल एक होर चाहिए। ओके हूँ देखो रोम्बस दे विच की होंगे, रोम्बस की
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, मतलब अगर ये टोटल 8 है तो इधर कितना बच जूगा 4, तो इधर भी कितना बच जूगा 4। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूजी प्रॉपर्टी की है कि यह 90 डिग्री का एंगल बनाऊगी जो भी उत्थे बाइसैक्ट करूगी। ये की है रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। हुण देखो हुण इत्थे मेरी वैल्यू कितनी है 4, आ मेरे को की बन रहा उरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक साइड मेरे को 4 है, एक साइड मेरे को 5 है, तो आ साइड मेरी कितनी आ जूगी, जे थोनों ट्रिपलेट्स का पता है तो ट्रिपलेट्स तो थोनों पता चल जूगा जी आवली साइड है वो मेरी कितनी आ जूगी 3। ए साइड मेरे को कितनी आ गई 3, जे ए साइड 3 आ गई तो आ भी 3 आ गई, मतलब टोटल मेरे को D2 कितना आ जूगा 6। ये मेरे को D1 सी ना 8, D2 मेरे को कितना हो जूगा 6। तो इतने वैल्यू में पुट कर दो, हाफ D1 8 है, D2 6 है, इन्हों कैंसल आउट करता 3 थे, मेरे को कितना आ गया 24 सेंटीमीटर एरिया है 10 स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन मैंने की कह रहा है, वट इज द सम ऑफ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.8। ठीक है, हजे क्वेश्चन खत्म नहीं होया, हजे भी कह रहा है, कहता एंड हजे क्वेश्चन अगे चल रहा है, एंड थर्ड प्रपोर्शन। मैं दो अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है लेकिन दोनों इको फार्मूले ना फाइंड आउट होंगे। फार्मूला की होंगे A/B = B/C। हुण पहला मैं मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना। मीन प्रपोर्शन का मतलब की है, मतलब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब बी की वैल्यू मेरी की आ जाएगी B = A × C दा अंडर रूट। जी सब तो पहली वैल्यू होगी 10.8 वो मेरी होगी A दी, दूजी वैल्यू 4.8 मेरी की हो जाएगी C की वैल्यू होगी। हुण इनू सॉल्व करा, इनू सॉल्व करके मेरे को 54 दूनी 2 मतलब 9 9 6 54, 54 दूनी 108/10 कुनू इत्थे मैं की लिख सकदा इनू 8 6 48 8 6 48/10 ऐदा मैं करता, सारे डिवाइड करता। हुण देखो 9 का 3 बार आ जाऊगा, ठीक है, 2 6 चो 1 6 बार आ जाऊगा, 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट करेंगे मेरे को कितना आ जाऊगा 4, 16 का अंडर रूट करेंगे मेरे को कितना आ जाऊगा 4/2 10 ने 1 10 बार आ जाऊगा, मतलब मेरा अंडर रूट सारा ही खत्म हो गया। तो वैल्यू देखो कि 18 18 चौके 72 7.2, बी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 7.2। एक क्वेश्चन हजे अद्धा होया। हुण दूजा सेम फॉर्मूला मेरा दूजे क्वेश्चन भी लग जाऊगा क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना। सी की वैल्यू मेरे को की आ जाएगी B² डिवाइडेड बाय A, B² डिवाइडेड बाय A। बी की वैल्यू मेरे को की है उरे बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू हो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसल आउट होंगे तो मेरे को सी की वैल्यू की आ गई 8 आ गई। हुण क्वेश्चन की कह रहे थे वट इज द सम, हुण आपां सम फाइंड आउट करना है, ये दोनों नू ऐड करना है, मतलब 7.2 + 8 ये दोनों ऐड करूँगा मेरे को कितना आ जाएगा 15.2 इज माई आंसर। 15.2 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स 9831 rupees. On one he gained 13% and on other he lost 13%. ओके ठीक है, क्या किया, वट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑन गेन एंड लॉस। ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना है कि मैनू गेन होगा या लॉस होगा। हुण एक चीज़ नूं मत्थे बन लो, पहली ये देख लो ध्यान नाल, ठीक है, जदों भी मेरे को SP सेम होगा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SP सेम होगा, ये पहली चीज़। दूजी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ गेन परसेंटेज ਤੇ लॉस परसेंटेज दोनों सेम होणगीਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SP सेम होगा दोनों आर्टिकल का, तो वो दोनों आर्टिकल का जिहड़ा गेन ते लॉस है वो दोनों सेम होणगीਆਂ, तो एट दी एंड हमेशा ऑलवेज हमेशा की होगा, मैनू लॉस ही होगा, हमेशा मैनू लॉस होगा। ठीक है, मतलब मेरे गेन की ऑप्शन तो दोनों खत्म ही हो गई, गेन दी ऑप्शन तो मेरे दोनों खत्म ही हो गया क्योंकि हमेशा मैंने लॉस होना है। तो इनू करने का बहुत ही सिंपल तरीका देख लो जिस कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, की है जो मेरी गेन्स की वैल्यू सी 13, इन्हें मैं की कर देना 13 का स्केयर कर देना तो डिवाइडेड बाय 100 कर देना, तो मेरे को कितना आ जाएगा 1.69%। ये मेरे को की हो रहा है लॉस हो रहा है, ये मेरे को की हो रहा है लॉस हो रहा है। बेस्ट ऑप्शन है लॉस 16%, ये रहा, ये बेस्ट तरीका है इस चीज़ को सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कह रहा है 2 numbers are in ratio of 5:11। ओके, इफ देयर SCF is 24 then find the sum of these 2 numbers। ओके ठीक है, हम देखो इनू किवें सॉल्व करना है, जो भी थोड़े को ऐसी कोई वैल्यू आ गई आप की कर देना 5 + 11 दोनों रेशियोज में तुम ऐड कर देना तो मल्टीप्लाई कर देना जो थोड़े को SCF की वैल्यू है। SCF की वैल्यू कितनी है 24, इतने कितना आ गया 16 16 × 24 तो 320 320 तो 64 मेरे को कितना हो गया 384 इज योर आंसर। 384 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 16, 30 एंड 34 ओके रिस्पेक्टली एट द वर्टिकल सर्कल ऑफ द रेडियस इज ड्रॉन एट द एरिया ओके। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਲ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲਸ ਤੇ मतलब एक पॉइंट ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ठीक है, ये सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का रेडियस दिता हुआ है, रेडियस दिता हुआ है ना 7 सेंटीमीटर, मतलब आ भी 7 सेंटीमीटर, आ भी 7 है, आ भी 7 है, आ भी 7 है तो आ भी 7 है, ये सारे मैंने 7 दी हुई हैं ठीक है। साइड कितनी दी हुई है 16, 30 ते 34, 16, 30 ते 34 मैंने की पता चल रहा है ये ट्रिपलेट्स वैल्यू ने, मतलब आ 34 आ जूगी, 16 ते 30 तुम कितने भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, आ 16 आ गई या 30 आ गई, मैं वैसे ही लिखता ठीक है ओके। वट इज़ द एरिया ऑफ ट्रिपलेट ओके एक्सक्लूडेड द पोर्शन कवर्ड बाय द डी सैक्टर। वो कह रहा हूँ की कह रहा, कहना जो आ पिछला पोर्शन है ना एरिया, एदा एरिया फाइंड आउट करना, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट करना है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मतलब मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂੰਗਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਹਾਫ बेस मेरे को कितना है 30, हाइट कितनी है मेरे को 16 ठीक है माइनस। उस तो बाद एरिया ऑफ सैक्टर की गल करा, एरिया ऑफ सैक्टर मेरे को लिख हूँ देखो एरिया ऑफ सैक्टर का फार्मूला की होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360, एरिया की गल हो रही है तो पाई आर स्केयर, क्योंकि ये सर्कल जो सैक्टर निकला तो पाई आर स्केयर। हूँ एक चीज़ की ध्यान रखियो कि जो भी मेरे को कोई ट्रायंगल होंगी है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जोड़े मेरे 3 एंगल है वो तीनों का सम की होगा 180 होगा, वो तीनों का सम की होगा 180 होगा। हूँ उरे मैं थीटे की वैल्यू की लिखूंगा, क्योंकि उरे थीटा अलग है, उरे थीटा अलग है, उरे थीटा अलग है, ये तो मैंने पता नहीं, लेकिन मैंने ये पता है की पता है कि तीनों जो मैं जोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी, मतलब 3 तो 180 मेरे खत्म हो जाएंगे। इनू खत्म हो गए मैं डायरेक्ट उरे की लिख सकता, इनू मैं नैक्सट लाइन के ही कर देना ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय इनू भी सॉल्व कर देना, 15 गुना 15 की बजाय मैं इतने कर देना 30 गुना 8 माइनस ते 3 गुना मतलब दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मेरे को कितना कि 80, सारा सम मेरे को करके कितना कि 80/360 गुना पाई दा 22/7, रेडियस मैंने कितना गिवन है 7 गुना 7, तो ये दोनों कितने कैंसिल हो गए 1/2 तो 7 है 7 कैंसिल हो गया, ये उरे कैंसिल हो गया 11 नाल, तो उरे मेरे को कितना गया 240, इतने मेरे को कितना गया 77, 240 चो जो मैं 77 करूँगा मेरे को कितना बचूगा 163, 163 मतलब ऑप्शन सी, यूनिट मेरे को किया सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, एरिया की गल हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, सो दिस इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 20, 18 men can complete a work in 9 days, 18 men can complete a work in 9 days, 18 men 9 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੇ ਹੈਵ ਵਰਕ ਫॉर 5 days, ਅਗਰ 18 men 9 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 18 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9 मतलब 162 यूनिट्स, 162 यूनिट्स टोटल वर्क है ठीक है। उस तो बाद की करा, कहना दे हैव वर्क फॉर 5 days, उन्होंने 5 दिनों लिए काम किया, अगर 18 मैन ने 5 days लिए काम किया तो कितनी यूनिट ऑफ वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उन्होंने 90 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया। 90 यूनिट ऑफ वर्क अगर कंप्लीट कर दिया तो मेरे को रिमेनिंग वर्क कितना बचूगा, रिमेनिंग वर्क 162 मैं 90 माइनस कर दूंगा तो मेरे को पीछे की बचेगा 2 3, मेरे को कितना बच गया 72, मेरे को तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 72 यूनिट्स, रिमेनिंग वर्क मेरे को पीछे कितना बच गया 72 यूनिट। अगे की कह रहा है 6 मोर मैन ज्वाइन, मतलब 18 च 6 होर बंदे ज्वाइन किए, मतलब कितने हो गए 24 मैन हो गए ठीक है ओके। हाउ मैनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, पिछे बचा काम च 24 बंदे किन्ने दिनों कंप्लीट करेंगे, काम कितना 72 है। हूँ इतने फार्मूला कि लगूगा टाइम का, टाइम की होंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उरे की आ जाऊगी ये मैन आ जाऊगा 24 क्योंकि 24 मैन ने, तो वर्क मेरे को कितना 72, बंदे मेरे को कितना 24, मतलब मेरे को कितना टाइम लगूगा 3 days, मतलब मैंने टाइम कितना लगूगा 3 days, ऑप्शन नंबर ए इज़ माई आंसर
ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 21, ए इनकम ऑफ ए एंड बी, मेरे को ए ते बी दो परसन ने, ठीक है, उन्हें ही रेशो की गल की है, रेशो कितनी कही है 5:3, ए इनकम की गल की है। देयर एक्सपेंडिचर ओके, एक्सपेंडिचर की भी गल हो रही है, एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है 9:5, 9:5, ठीक है। इफ इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, कहता इफ इनकम ऑफ ए, जे इनकम ए दी ट्वाइस हो जाए कि नाल एक्सपेंडिचर ऑफ बी नाल, बी दे एक्सपेंडिचर तो 2 गुना हो जाए इनकम ऑफ ए। हुण देखो एक्सपेंडिचर कितना है 5, उरे कितनी है 5, वो कह रहा है कि जी इनकम है ए दी दो गुना हो जाए कि नालों, ये नालों, मतलब इधर मल्टीप्लाई 2 करांगे, इधर मल्टीप्लाई 2 करांगे तो ही होगा। हुण देखो जे रेशो का एक रूल है, की रूल है, जे कोई चीज़ तुम एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूजी साइड भी मल्टीप्लाई हो जूगी, तो मतलब इतने कितना आ जाऊगा 10:6, दो जो 2 है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे को इनकम की नवी रेशो कितनी आ गई ए आ गई, ठीक है। उन्होंने एक्सपेंडिचर चेंज करने नहीं किया, नहीं किया, तो एक्सपेंडिचर मेरे को कितना आ गया, एक्सपेंडिचर तो मेरे को सेम है 9:5, एक्सपेंडिचर मेरे को सेम है। हूँ अगे की कह रहा है, दैन वट इज़ द रेशो ऑफ सेविंग, सेविंग की की रेशो होगी, सेविंग की की रेशो होगी, सेविंग होंगी की है, जे मेरी कोई इनकम है, ठीक है, इनकम जो मैं कुछ चीज़ा खर्चा कर रहा, अपनी सैलरी जो मैं कुछ खर्चा करता था, पिछे जो चीज़ बची वो मेरी की बची होगी, सेविंग ही बची होगी ना, तो मतलब इनकम चो जे मैं एक्सपेंडिचर घटाना तो मेरे को कितने बचूगा सेविंग, ए बच गया ए का, तो बी का ऐदा, दोनों की मेरे को वैल्यू की आ रही है 1:1, मेरे को वैल्यू की आ रही है 1:1। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्टेड 8% पर एनम अमाउंट टू 20280, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड के अन्ना इन्वेस्ट कर रहा, ठीक है। वैन द इंटरस्ट इज कंपाउंडेड, ओह कंपाउंडेड हाफ ईयरली सब तो जरूरी है, ये चीज़ मैं सब तो वड्डा उरे लिख लेना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, की हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब अगर मेरा 8% पर एनम है, एक साल के 8% मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट है, तो 6 महीनों के लगूगा, 6 महीनों के 4% लगूगा, अगले 6 महीनों के भी 4% लगूगा, तो ही एक साल के टोटल 8% होगा, मतलब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली की गल हो रहा है तो मेरा हाफ हो रहा है, रेट ऑफ इंटरस्ट मेरा की हो रहा है हाफ हो गया, ठीक है। अगे की कह रहा है, वट बिल विद द सिंपल इंटरस्ट, अच्छा वो नैक्सट लाइन के पहला अन्ना सोल्व कर लिए। देखो यदि गल की कह रहा है, कहता ये की है 6 मंथ की गल हो रही है, 6 मंथ के लग रहा है 4%, 4% की फ्रैक्शन की होंगी है 1/25, जिहदे मैनू की पता है 25 मेरा की है प्रिंसीपल, 1 मेरा की है सिंपल इंटरस्ट। अगर मेरा सिंपल इंटरस्ट ते प्रिंसीपल ते अमाउंट की रेशो बनावा तो 1 मेरे को की आ जाऊगा, सिंपल इंटरस्ट प्रिंसीपल मेरे को कितना 25, अमाउंट की होंगी है ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन की होंगे अमाउंट है, एक की गल हो रही है 6 मंथ की गल हो रही है, मतलब ये 6 मंथ पहले हाफ की गल हो रही है, अगले हाफ की गल करांगे, अगले हाफ च मैं की करूँगा, अगले हाफ की गल जो भी होगी तो ये सारे का की होगा स्केयर होगा, ये सारी चीज़ का की होगा स्केयर होगा, मतलब इतने 1 आ जाऊगा, इतने 625 आ जाऊगा, इतने 676 आ जाऊगा, ये थोड़े को वैल्यू होगी। हुण अमाउंट की वैल्यू अपन क्वेश्चन दी हुई है, अमाउंट की वैल्यू अपन क्वेश्चन कितनी दी है 20280, 20280 अगर मैं देखा तो यह मेरी किन्ने से जा रही है, ये मेरा 30 से जा रहा है, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू मेरी कितनी होगी 30, तो इतों मेरा प्रिंसीपल निकल जूगा, प्रिंसीपल कितना हो जाऊगा 18750, ये मेरा आ गया प्रिंसीपल, मतलब अन्नी चीज़ मैं की है प्रिंसीपल ते मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट लग्या, इस प्रिंसीपल ते मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट लग्या। हूँ नैक्सट लाइन के कह रहा है, वैन वट विल बी दी सिंपल इंटरस्ट ऑन दी सम, कहता ये मेरे को टाइम पीरियड है 4/3/5, मेरे को कितना बन जाऊगा 23/5 ईयर्स, ठीक है, मेरे को टाइम पीरियड लग गया। कहना जे मैं डबल कर रहा, डबल किनू कर रहा रेट ऑफ इंटरस्ट नू, कहना रेट ऑफ इंटरस्ट नू डबल कर रहा, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट है 18 है, उरे मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट कितना हो गया 16% पर एनम, उरे रेट ऑफ इंटरस्ट मेरा कितना हो गया 16% पर एनम हो गया। ओके, हूँ मैं सेम चीज़ को अप्लाई करना, मतलब 18,750 गुना 16/100 गुना टाइम पीरियड मेरे को कितना है 23/5, 23/5 ये मेरा पूरा टाइम पीरियड है। हूँ मैं सारी इतने क्रॉस सिंपल इंटरस्ट देखना मेरे को कितना आ जाऊगा, देखो 5 की वैल्यू उरे कट्टी गई, मेरे को आ जाऊगा 3, पिछे आ गया 7 5, ये सारी चीज़ उरे आ गई, 0 आ गई, 0 0 0 उरे कैंसल आउट होगी, ठीक है। इतने मेरे को आ गया 8, इतने मेरे को कितना आ गया 5, ठीक है, 5 की वैल्यू उरे फिर कट गई, 5 7 35, पिछे 2 5 5 25, ठीक है। 75 जे मैं उरे मल्टीप्लाई करा तो 150, 15 चौके 60, तो मेरे को कितना आ गया 600 गुना 23, 600 गुना 23 मैं मल्टीप्लाई करा मेरे को कितना आ जाऊगा 18,13800, दिस इज माई 13800, 13800, ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। ओके,
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है ए ट्रेन कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है 45 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इफ दी स्पीड रिड्यूस कहना जे स्पीड रिड्यूस कर रही है ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ 5 किलोमीटर पर आवर ਤਾਂ ट्रेन ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ 5 ਘਟਾਦਾ 5 किलोमीटर पर आवर ਤਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਘਟਾਤੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 45 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 45 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 48। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 16, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 15, ठीक है। लीस्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 15। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ 1 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਆ ਗਈ। 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 80 किलोमीटर पर आवर। तो उरे मेरे को कितनी वैल्यू आ जाएगी, उरे मेरे को वैल्यू आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। देखो पहला स्पीड कितनी सी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 5 जो घटाई तो मेरे को स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट मेरे को स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। हजे क्वेश्चन खत्म नहीं होया, हजे की कह रहा है मैं डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डिस्टेंस की होंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हुण देखो स्पीड अगर मैं 80 ले रहा, मान लो मैं स्पीड 80 लीती है, तो जी मैं स्पीड लीती है मैं उही टाइम नाल उन्होंने कंपेयर करूँगा। स्पीड अगर मैं 80 लीती है, टाइम मैं कितना लूँगा 45। अगर मैं स्पीड 75 लेंदा तो मैं टाइम कितना लेना सी 48 लेना सी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखियो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम मेरे को कितना है 45। टाइम मेरा काहदे च है, टाइम मेरा है मिनट्स है, लेकिन स्पीड मेरी काहदे च है, स्पीड मेरी आवर्स है। मतलब मिनट्स में मैं आवर्स कन्वर्ट करूँगा। इतने मैं की करूँगा 60 नाल डिवाइड करूँगा, 0 0 का इतने आउट होगी। इतने कितना आ जाएगा 3, इतने कितना आ जाएगा 4, इतने आ गया 15, तो 15 चौके 60, मेरे को कितना आ गया 60 किलोमीटर इज़ माई आंसर। 60 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ माई आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, दी नंबर आर इन दी रेशो ऑफ 1/2, 2/3, 3/4। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना 27। द स्मॉलर नंबर इज आप स्मॉलर नंबर आप फाइंड आउट करना कि स्मॉलर नंबर कितना होगा। ओके, हुण पहला रेशो जी 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4। तो हुण रेशो का एक होर रूल है। रेशो का एक होर रूल की है, रेशो की कहता है कि रेशो हमेशा थोड़ी लीनियर फॉर्म दे विच होगी, कदे भी फ्रैक्शन दे विच नहीं होगी। पहला फ्रैक्शन को खत्म करो। फ्रैक्शन को खत्म किवें करूँगा, मैं मेरे को कितना आ गया 12 एलसीएम ले लूँगा। 12 एलसीएम इत्थे कितना आ जाऊगा 6, ऐसे इत्थे कितना आ जाऊगा, इत्थे मल्टीप्लाई करूँगा मैं कितना 3 4 4 8 आऊगा 4 8 यस 8 आऊगा। इत्थे कितना आ जाऊगा, इत्थे मेरा आ जाऊगा 9 आ जाऊगा, इत्थे मेरा कितना आ जाऊगा 9। तां मेरे को रेशो की आ गई जी लीनियर फॉर्म दे विच रेशो आ गई 6:8:9 आ गई। ओके, ठीक है। अगे की आया दी डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कहना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दे विच डिफरेंस, मतलब रेशो दे विच देखा जाए तो ग्रेटेस्ट ते स्मॉलेस्ट नंबर तो दोनों दे विच डिफरेंस कितना है, रेशो दे विच डिफरेंस कितना 3, तो वही डिफरेंस वैल्यू दे विच कितना है 27। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 9, 1 पार्ट की वैल्यू की आ गई 9। उन्होंने की किया दी स्मॉलेस्ट नंबर इज आप स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को कितना 6, इन मैं 9 मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को कितना गया 54। 54 इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25th अपना लास्ट क्वेश्चन आज का की कह रहा है, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 30%। ओके, एक नंबर डिक्रीज कर रहा है 30% नाल। ओके, दैन इंक्रीज बाय 30%, फिर उन्होंने 30% नाल इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैन फर्दर इंक्रीज बाय, फिर दोबारे उन्होंने आप 30% नाल की कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वट इज़ द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। की नेट इंक्रीज एट द एंड हो की रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो पता करना तो कितना हो रहा है वो चीज़ दसनी है। देखो ये क्वेश्चन जो भी सोल्व करना है, सब तो पहली वैल्यू तुसीं की अज्यूम कर लेना 100% अज्यूम कर लेना।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100% ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, -30% ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ 100% ਤੋਂ 30% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 70%, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 70%। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 30% ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 30% ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਅਗਰ 70 ਦਾ 30% ਦੇਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 21, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 91%, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 91% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਵੀ 30% ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 91 ਦਾ 30% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 27.3, 27.3 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 118.3%, 118.3% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 118.5, ਤਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 18.3% ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 18% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਥ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ PPSC ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।